Hello everyone. Today we have Jivanshu Sharma on the show, and you will be changed as a person, as a founder, or whatever you are. You will be changed after listening this podcast. So let's welcome Jivanshu on the podcast. Hi Jivanshu, how are you? I'm good, and it's a pleasure to be in the show. तो थोड़ा सा गेस्ट को अपने बारे में बताओगे कि आप करते क्या हो, कहाँ से हो, क्या है? Mhm. Sure, प्लीज। sure. So I'll give you a brief introduction. It will be a overall thing. So Jivanshu has many aspects. First of all, is he likes learning new things. So if you guys follow the Twitter and other stuff, you'll see that I love reading books and learning from things, right? So that's me as a person. And apart from that, I love building startups, still learning, still figuring out. So we run a marketing agency where we help brands and e-commerce brands, startups, helping them scale their revenue online. So that's one thing. Second thing is second thing, third thing is I love creating content. So learning from you as well, Shreyans. I love your podcast, जितने भी देखे हैं, and बाकी creators से भी. So trying to do some things, this learning जो भी curiosity आता है, try to figuring out, follow करते हैं उसको. और वो सिंगिंग वाला एस्पेक्ट बताओ। ओह सिंगिंग वाला एस्पेक्ट क्या हम्म, सो दैट्स एक्चुअली वो होता है ना कि आप काम कर रहे हो ठीक है फिर दैट्स लाइक अ स्ट्रेस रिलीफर फॉर मी ठीक है हम्म, सो लाइक सिंगिंग इज माय पैशन एंड सो आई सिंग एंड राइट सॉन्ग्स लेट्स सी थोड़ा काम चल रहा है आई वाज थिंकिंग probably let's see in upcoming few months I will probably publish a song let's see but yeah so ओके that's a ओके। thing and music is like हम सबके दिल के करीब है right music हाँ is हाँ something मैं। जो हम मतलब सबको कनेक्ट करता है तो I guess yeah. हम्म। सो म्यूजिक एक बात तो आपकी एग्री करूंगा कि म्यूजिक ना, जो शायद जो वर्ड्स हम खुद से नहीं कह पा रहे होते ना, वो Mhm. म्यूजिक कन्वे कर रहा होता है। ये बहुत ज्यादा ही केसेस में होता है। लाइक कभी कभी शायद रोना तक आ जाता है कि म्यूजिक सुनते सुनते। दैट इज द केस। ओके। अरिजीत सिंह के सॉन्ग्स ना नहीं नहीं, वो तो अलग ही पूरा स्पेस चला जाता है ना। दैट्स अ डिफरेंट लेवल That's a different level. So now my next question from you will be, what is Gen X? Okay, what is Gen X 24? What is it all about? Like we were researching upon you, and हर पॉडकास्ट से पहले हम थोड़ा सा आसपास के लोगों से या जितने भी कलेक्शन है उससे पूछते हैं कि what is the person doing and what is he building. So we got to know that you are building something known as Gen X 24. तो क्या बताओगे सबको कि Gen X 24 है क्या, कि वो करता क्या है? प्लीज। श्योर सो लेट मी गिव यू अ थोड़ा सा front story before Gen X okay so what I did was before that I was freelancing with a lot of creators helping them create content how to build their revenue streams kind of that and so I thought it's a very interesting space ऐसे भी creator economy बहुत ज़्यादा boom कर रही थी so I thought कि why not creators and brands the kind of things like that so I tried figuring out and stuff so then I realized that brands, e-commerce brands, they need help with their marketing needs. And most of the people were like little old and they were not familiar with the online stuff, right? So it's basically taking businesses offline to online. Okay. So what we do was one of my co-founders, I met him online, just like this. I showed him a DM and I was like, hey man, would love to have a conversation with you. And somehow we vibed and we just connected and we started this thing. So we what we do is we help startup and e-commerce brands. We understand their story. Every brand, everyone, whether be it Shreyas, whether be it Jivanshu, whether it be any brand, everyone has a story to tell. Okay, so we believe that if you tell that story to your audience now, everyone relates to it. That's one part of the thing. Second thing is you need to support that with a revenue stream. That only fuels your growth. So we help a startup e-commerce brand find their story, which the customer relate to, and at the same time we help them build online channels of streams which help them build their revenue streams. So that's what we are currently building. Okay, okay. And this happened in which year? It's like around 1 year हो गया शुरू किए हुए. So Hmm. it's yeah. Oh, I guess June. It's 1 year. Yeah, I Hmm. started in June itself. So yeah, it's Okay, it's one okay. year. Wow, wow, awesome.
The second thing I would like to add is that if someone wants to work with you, like so many people, जैसे आपने freelancing की थी, ठीक है? अब Hmm. कोई आपके साथ अगर काम करना चाहे, तो what are the ways to connect with you? Very, very simple. Go on LinkedIn, you can shoot me a DM. And we have a very different thing, thoda sa. So what happens is people shoot me a resume या फिर ऐसा वाला, right? So Hmm. what we believe in, क्योंकि resume यार आजकल chat GPT everybody makes it, right? So Hmm. we are not that resume type of people. We say that make a video, 1 minute video, 2 minute video of Hmm. you Hmm. Hmm. as to how you can help us Show us and your how you relate to portfolio. us. Yeah, what's your portfolio kind Hmm. of thing, and Hmm. make a video. Okay, use your creativity and send it to us. Hmm. And that's how we actually select a lot of people from LinkedIn and areas. So yeah, you can do that if you want to work with us, and we are open to hiring all the time. We love all the new talent coming up, and yeah, you can shoot me a DM on LinkedIn. Hmm. Hmm. Can you tell everyone how much year old you are? How much old you are? Turning 20 on July, Okay, see so everyone. 19. Take inspiration. Okay, so the next question I would like to ask to you is that a book have a big role in your life. Okay, books. So, what is that role to your life, and can you suggest some books that, from the founder's perspective and from the life's perspective? I have asked three questions. You Sure. can answer it. So, well, books, I can't stress enough the fact that books कितने important होते हैं. Hmm. So, I was not an avid reader. ठीक है? Everyone, I guess, बहुत सारे Gen Zs and people are not that reading, and maybe they would watch a podcast, Hmm. a conversation. That's good. But Hmm. I guess reading is a habit which everyone can inculcate. Same happened with me. जो लॉकडाउन का पीरियड था ना, I started pushing myself to read books Hmm. because I wanted to learn things. And मैंने कहीं एक quote सुनी थी. I guess you can uh, verify that from the person को याद नहीं. He said कि if you are reading a book, right, Hmm. उस इंसान ने अपने 30-40 साल लगाए हैं एंड उसको 30-40 साल में जो भी वो सीखा है he wrote that thing in a 200 piece of book जो Hmm. कि आपको एक हफ्ते लगेंगे. सो दैट Hmm. मीन्स आप उसके 40 साल के एक्सपीरियंस को आप एक हफ्ते में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यू कैन लर्न फ्रॉम. So हाँ. that's how powerful books are, right? So that's उसके बाद से मैंने then I started learning reading books and books. So yeah, coming to one favorite books of mine, I'll give you three. Okay, different genres के. Hmm. First is How to Win Friends and Influence People. हाँ, I This agree. book, oh my God. Hmm. So I used to be a very introvert person. वो story हम बाद में देखते हैं. Will cover up someday. आगे में ठीक है. So I मुझे बात करना नहीं आता लोगों से. But when I started reading this book, How to Win Friends and Influence People, and उस books में जो points थे, oh my God, I can't believe इतने practical points. So everyone who wants to learn communication, कुछ भी, that book is your go-to thing, and it's very Hmm. simple written. Hmm. So if you're a beginner, you can read that book. Second is there's a book called The Almanac of Naval Ravi Khan हाँ. by Tim Yeah. Ferriss, and that book Yeah. is I all-rounder agree. for life. I agree. Health, wealth, And relationships, and all are happiness. covered in that book. Yeah, so that's an all-rounder book. If you want to learn about relationships, so that's why I love that book. Dynamic, everything cover होता है. And third thing, जो मैं अभी recently I read it. It's called Tools of the Titans by Tim Ferriss. टिम पेरिस या वो थोड़ी सी पहली बार में मैंने भी वो बुक पढ़ी. उसके बारे में एक चीज बता दूं, पहली बार में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगेगी क्योंकि वो एक तो इतनी मोटी बुक है. ठीक है. हाँ हाँ. उसके उसके आपने पढ़ी होगी तो आपको भी पता ही होगा. फिर उसके बाद अलग हम्म. अलग चैप्टर्स हैं उसमें कि हेल्थ के लिए ये है, वेल्थ के लिए ये है. तो हम्म. पहली बार में उसको बुक को देख के डरने की जरूरत है नहीं. आफ्टर True. रीडिंग इट यू विल बी अ चेंज पर्सन, इन माय ओपिनियन. सो उस बुक Definitely. को देख के डरना तो मत. ये बाकी वाले सब व्यूवर्स के लिए है. सेम व्हेन वो बुक मैंने खरीदी थी ना, लाइक हम्म. इतनी मोटी बुक मैं कैसे पढ़ूंगा एंड हम्म. चीजें. बट पता अब ऐसा हो गया, आई हैव रेड द एंटायर बुक, बट समडे व्हेन इफ आई एम फीलिंग लो ना, आई टर्नड अप टू एनी चैप्टर बिकॉज दैट्स द ग्रेट पार्ट अबाउट दैट बुक. हम्म. Every two page you have one chapter and that's it. हम्म. हम्म. Right. So I turn up to any chapter, get some inspiration and that's it. वो पूरा हम्म. पढ़ने का वो नहीं कि भाई सुबह स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ना है. So हम्म. yeah, that's a very amazing book. वो थोड़ा सा I think not advanced, but आप 2-3 बुक्स पढ़ लो उसके बाद I guess you should go to that. हम्म. But yeah, that's a really amazing book. हम्म. आप हो कहाँ से? यो फिर से तो. I, I'm right now from Kolkata. हम्म.
ओके सो इधर अब ओके मैं श्रेयांश, आप कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम लखनऊ बट like I'm currently residing in Bangalore. ओह नाइस। Okay, so the next question I will ask is that सिंगिंग का कहाँ से आया और क्या सिंगिंग में क्योंकि एक ज्यादातर देखा जाए ना अच्छे सिंगर्स इंडिया में बंगाल से बहुत निकले हैं तो इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन बंगाल एंड सिंगिंग और द अदर थिंग आपको सिंगिंग में शौक कहाँ से आया ठीक है उसके बाद और भी क्वेश्चन है सिंगिंग से रिलेटेड ओके, दैट्स समथिंग वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ टू हम्म कनेक्ट ऑल द डॉट्स। फर्स्ट इज इट वाज लॉकडाउन टाइम, ठीक है, एवरीवन वाज स्क्रोलिंग रील्स, हम भी स्क्रॉल कर रहे थे रील्स। हम्म देन आई यूज्ड टू लर्न गिटार उस समय, बट आई वाज नॉट दैट serious regarding the guitar and stuff. But it was so boring, so I thought I have a guitar, let's pick up that skill. So I started practicing guitar seriously after that. 2-3 साल से मैं कर रहा था, but I was not very serious, हम्म just जा रहे कर रहे। After that I got very serious with guitar, so हम्म practicing, learning, right? So what happened was उससे ना एक confidence आया। So हम्म I used to be a very introvert kid, मैं लोगों से बात नहीं करता था। हम्म एंड लॉकडाउन के समय तो और ऐसा हो गया था कि नो कन्वर्सेशन, जस्ट ऑनलाइन। So हम्म this guitar gave me a confidence कि yeah, I have some work, and that was the first skill which gave me confidence. So that's where it started. Music तो obviously close है दिल के, but guitar gave me a confidence to speak to people. So the हम्म first time when I went to a family gathering and I performed, let's say I was with 50-100 people थे, and मैंने गाया था उतना अच्छा तो नहीं था, but yeah. So जब पहली बार मैंने परफॉर्म किया था ना 50 पीपल के सामने, आई कांट टेल यू, मैंने इतना कॉन्फिडेंट लाइफ में कभी फील नहीं किया। And हम्म that led on to me becoming, talking to people कि yeah, everyone has something to offer, and that was the journey for guitar and music, right? हम्म And Bengal, all the thing, guys, if you look at the history as well, right? Bengal has produced such amazing हाँ हाँ singers. हम्म So you won't believe me, in the culture, art and culture of बंगाल में ना, every student जो यहाँ पे grow करता है चीजें, art and culture इतने रगों रगों में बहती है ना कि everyone is connected to art, maybe music in some way or the other. हम्म So I guess बिगनिंग से ऑफ अ लाइफ किसी के भी, तो उसका इन्फ्लुएंस बहुत रहता है, तो आई गेस इसलिए बहुत सारे अच्छे सिंगर्स आर्टिस्ट बंगाल से आते हैं। हम्म सो आई गेस आर्ट एंड कल्चर का बहुत इन्फ्लुएंस है यहाँ पे लोगों पे, तो आई गेस दैट्स द रीजन फॉर प्रोड्यूसिंग सो मेनी गुड आर्टिस्ट फ्रॉम बंगाल। हम्म एंड अब सेकेंड थिंग ये आती है जो आप क्योंकि देखो गाने लिखते भी हो ठीक है मतलब रिव्यूज को भी बता दूं कि गाने लिखते भी हैं जीवांशु सो अब गाने लिखने के लिए भी एक राइटिंग प्रोसेस होती है सेम राइटिंग प्रोसेस बुक राइटिंग में भी होती है जैसे आई रोट अ बुक सो मुझे पता है कि हाँ इट्स अ इंटेंसिव प्रोसेस जहाँ पे पूरा एक डीप डाइव करनी होती है तो आपका क्या माइंडसेट होता है जब कोई गाना लिख रहे होते हैं या कुछ भी लिख रहे होते हो इवन अ ट्वीट वहां पे भी कुछ लिखते हैं तो एक माइंडसेट होता है तो वो आपका क्या माइंडसेट होता है उसमें I completely agree to you, बहुत ज्यादा, you have to indulge in the thinking process, and book तो obviously बहुत बड़ी चीज हो जाती है हम्म because starting से end तक, and so kudos to you for writing that book. And I'll read that book definitely, ठीक है, अभी तक मैंने नहीं पढ़ी but I'll read it, ठीक है। So yeah, process बताना, actually what happened was music was always a passion for me, okay, I didn't want it to go professionally into that. Business was the thing, but I thought let's pursue some passion as well. तो मैंने ना ऐसे ही शौक शौक में लिखना शुरू किया था, शायरी लिखना शुरू किया था। ओके, वो होता है ना एट दैट फेज ऑफ योर लाइफ, थोड़ा सा आशिक टाइप हो जाते हो आप, हम्म यू स्टार्ट राइटिंग शायरीज एंड ऑल। सो आई थॉट कि यार ठीक है, शायरीज लिख लेता हूँ मैं, तो आई हैव थोड़ा सा सेंस कि चलो लिखने का भी आ गया, एंड लिंक्डइन एंड ट्विटर पे भी लिख रहा था चीजें। हम्म So then I realized कि it's all about expressing your emotions, whether be it singing, whether be it a tweet, whether be a LinkedIn post, whether be it anything. हम्म It's about telling your emotions or telling a story to the world. हम्म So after that, then I realized कि ये जितनी भी चीजें, इसके हर एक प्रोसेस है, इसका हर एक प्रोसेस है, बट जब आप इमोशंस को कनेक्ट करके लिखते हो ना, लाइक समथिंग विच यू फील फॉर इट। यस सो रिसेंटली अभी जो मैं एक सॉन्ग भी लिख रहा हूँ, राइट, probably would be my first song, and let's see if I publish it. तो that's all about your emotions, और आप अपने emotions को share करना चाहते हो वर्ल्ड के साथ। हम्म So I guess that's very important, and that's where the audience connects with it. I guess Shreyas, हम्म आप भी जो अपना podcast, ये हमारा podcast है,
So I guess you try to share your emotions with your with the audience, जो भी Yes, guest yes. आते हैं. So Yeah. that's what helps them connect with the thing, right? Hmm. So I guess that's very important when you're writing या कुछ भी creative चीज हो. So Hmm. that's very important. हम्म। एक और बात इसमें जैसे स्पेशली सॉन्ग राइटिंग या सॉन्ग को जो कंपोज करने वाली चीजें होती उसमें एक चीज मैं मतलब मेरी रिस्पेक्ट इस वजह से बढ़ जाती कि उसमें ना कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जब हमको वर्ड्स को मिलाना होता है, ठीक है, Mm-hmm. राइम कराना होता है कि जैसे अब कोई भी गाना ले लो, इन रैपिंग इट्स इजी क्योंकि Mm-hmm. कुछ भी डाल दो उसमें, इन माय ओपिनियन, बट इन द लाइक द थिंग यू डू ऐसे टाइप में थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो वहां पे मेरे अंदर उनके लिए, ऐसे सॉन्ग राइटर्स के लिए, आपके जैसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है क्योंकि इट्स अ टफ प्रोसेस कि वो वर्ड ढूंढो, अब पूरी वोकेबलरी उसी वर्ड के साथ ढूंढना, इट्स अ टफ थिंग टू डू। और वैसा भी नहीं Mm-hmm. कि एकदम इतनी अच्छी वाले हिंदी डाल दें कि किसी को समझ में ही ना आए, वैसी वाली भी नहीं डालनी होती, सो इट्स अ वो टफ शुद्ध थिंग। हिंदी वाली राइट या. हाँ, शुद्ध हिंदी। तो वो वाला एक मतलब मेरे अंदर रिस्पेक्ट बढ़ाता है आप लोगों के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए। आई रिस्पेक्ट एवरी प्रोफेशन। सो मतलब सीरियसली आपके लिए, सीरियसली जीवांशु भाई आपके लिए मेरी रिस्पेक्ट क्यों बढ़ जाती है क्योंकि आप म्यूजिक को एज अ फैशन फॉलो कर रहे हो, तब भी उसमें अपना 100% डेडिकेशन दे रहे हो, ठीक है, स्टार्टअप भी साथ में कर रहे हो, एंड इट्स अ टफ थिंग टू डू, मतलब इतनी सारी चीजें साथ में करना बहुत टफ हो जाता है कभी कभार, तो है ना। डेफिनेटली हम्म। हो जाता. एंड बीइंग अ स्टूडेंट एज वेल, तो Yeah, हो yeah, yeah. जाता Being है. a student as well, yes, because you have to keep up with your marks and all. Yes, I'm going through the same thing, and I agree with you on this. दैट असाइनमेंट प्रेशर आई गेस हम्म, श्रेयस वुड एग्री टू मी. हम्म, बहुत हम्म। प्रेशर होता है. हाँ, बहुत ऐसे होता है, लाइक आई हैव, मेरा ऐसा रहता है करने के लिए कर रहा हूँ, ऐसे वाला हो जाता है कि करने के लिए कर दो एकदम वो 100% डेडिकेटेड होके वाला, तो नॉट डूइंग लाइक दैट, ऑनेस्टली स्पीकिंग। हाँ, सो अग्रीड. हम सब ऐसे ही करते हैं गेस बिकॉज एट द आई एंड गेस, इट्स जस्ट लाइक यू हैव टू पास इट बाय. तो या हाँ दैट्स हाँ, द क्योंकि माइंडसेट. जो स्टार्टअप वाले हो जाते हैं शायद उनको अब इन चीजों से कम फर्क भी पड़ने लगता है। हाँ, घर के लिए कर रहे होते हैं. घर हाँ वाले हाँ कहते हैं ना कि हाँ, बेटा कि एक पढ़ ले. कागज का पेपर होना चाहिए हाँ, दिखाने के कागज का लिए। पेपर होना चाहिए. कभी हम्म, रिश्ता दिखाने जाएंगे तो कि हाँ, हाँ बेटा पढ़ा ट्वेल्थ लिखा फेल है. कहलाओगे। हम्म, हाँ, सो इसलिए हम सब पढ़ रहे हैं शायद. हम्म। So this brings me to the next question that why are you doing this startup? Like it's easier to सिट एट होम, और जो पढ़ाई चल रही है सिर्फ उसी को करते रहो, इतनी सारी चीजें ट्राई करने का क्या मतलब, इतना अपने आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाने की क्या जरूरत है? There might be some purpose behind that. So what is that purpose and why are you doing it? That's a fascinating question. Okay, मतलब I guess हमारे सबके पास पर्पस तो होता ही है. कभी कभी नहीं भी होता है, हम ढूंढते रहते हैं पर्पस एंड ऑल. सो ये Hmm. चीजें क्यों स्टार्ट करी? इट्स बेसिकली विद द मोटिव कि कुछ डिफरेंट करना चाहिए आई गेस लाइफ में, बिकॉज विद द इंटरनेट बूमिंग इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज. Hmm. एंड आई हैव सीन इन लाइक मेरे फैमिली में लोग, इट्स गुड गुड थिंग्स, सब कुछ अच्छे चल रहा है, बट वो लाइफ में ना वो किक, ऑनेस्टली दैट किक नहीं आता है. वो लगेगा बहुत ही हाँ, ब्लैबरिंग कि वर्ड बट हमने क्या किया, वैसे वाला। हाँ, मतलब थोड़ा सा तो कुछ अलग करे, ठीक है. हम्म, एंड एट द एंड अगर ये नहीं भी सक्सेसफुल होता है, नहीं भी होता है, तो चलो अपने जॉब या फिर उस टाइप में कर ही सकते हैं आई गेस. हम्म, एंड सो इट्स ऑल अबाउट कि थोड़ा सा कुछ अलग करते हैं, बिकॉज आई गेस कुछ और रिजल्ट आ जाए, बिकॉज आई वाज नॉट हैप्पी कि विद द हम्म, रिजल्ट्स व्हिच आई हैव सीन इन द फैमिली की हम्म, यू डू अ जॉब. आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिस्पेक्ट द जॉब. ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ वो वाला सेम। नहीं होता है, बट इट्स लाइक समटाइम्स लगता है ना कि यार चलो खुद का कुछ करना है. सो वो वाला Yes. चीज था, तो आई गेस आई स्टार्टेड. And this is, in my opinion, this is a normal human psychology that people love their creation, right? अगर देखो जैसे हम लोग अपने मम्मी पापा की क्रिएशन है तो वो हमसे प्यार करते हैं। तुम एक चीज खुद से भी बता दो, इवन अगर तुम अच्छी राइटिंग में एक पेज पे लिख देते हो तो यू वॉच दिस 3-4 टाइम्स, ओके। तो एक अग्रीड ना अग्रीड. एक आइडिया तुम्हारा अगर कोई अच्छा चल जाए, उसके बाद तो लगता है कि हाँ ये मेरी क्रिएशन है, दिस इज माइन। कि जब भी कोई चीज अपनी लगती है, इवन यू आर मेकिंग अ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, कोई भी पार्टनर भी होता है तब भी कहते हो शी इज माइन, सो दिस गिव्स यू अ डोपामिन किक, है ना, और ये एक वैलिडेशन भी देता है कि दिस बिलोंग्स टू मी, द क्रेडिट फॉर दैट थिंग गोज टू मी। सो दिस इज द नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी बिहाइंड दैट, फॉर क्रिएटिंग दैट थिंग और गेटिंग दैट किक।
You can carry on, bhai. अग्री टू दैट। एंड मतलब ये अग्री करता हूँ मैं कि थोड़ा सा वो होता है, अगर आपने एक लाइन भी लिख दिया ना तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ इसमें मेरा पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स वर्ल्ड। हम्म। सो जस्ट एक छोटा सा चीज श्रेयास, आप टेल मी यू एज वेल, यू आर मैनेजिंग सो मेनी थिंग्स लाइक पॉडकास्ट एंड स्टार्टअप्स, हाउ डू यू मैनेज एंड व्हाट वाज द इनसाइड? आई गेस आपने कभी शेयर किया होगा ये, बट थोड़ा सा जिस दे दो हमारे like, मतलब हमारी ऑडियंस को। जैसे What ये was the your purpose behind this? द पर्पस बिहाइंड इंडी स्पेस इज लाइक इंडी स्पेस जो हमारा स्टार्टअप है उसका पर्पस ये है कि टू मेक Indians especially the human space travel cheaper and easy. Okay, Mhm, and इंडियंस वर द वंस जो 40 साल पहले या कुछ 40 साल पहले गए पहली बार स्पेस में दूसरे की mhm, टेक्नोलॉजी पे। इंडिया में अभी तक हम खुद स्पेस mhm, में अपने अब तैयारी कर रहे हैं। वी आर ऑलवेज बिहाइंड अमेरिका। हम अमेरिका की mhm. बराबरी कब करेंगे? तो आइडिया इज दैट कि हम मार्स पहुंचे स्पेस एक्स से पहले, वहां पे सही। इंडियंस हों, है ना, इंडियंस हों। ये पर्पज है क्योंकि यार हम विश्व गुरु हुआ करते थे, अगर हम वापस वो नहीं कर पाए, हम दुनिया को सिखाते थे और अब दुनिया हमसे आगे निकलती आ रही, तो ये तो लाइक आई कांट लिव विद दैट। सो इंडी स्पेस इज डूइंग दैट, इंडी स्पेस इज वर्किंग Amazing. हार्ड ऑन दैट। ओके, एंड एक हर इंडियन का स्पेशली ये रहता ही था कि चंदा मामा दूर के, तो वो चंदा मामा पास के करने का एक गोल है इंडी स्पेस का, Mhm, है ना। और ये यूट्यूब चैनल का एक्चुअली व्हेन आई रोट द बुक, ओके, सो बुक बहुत अच्छी रही, लाइक अभी इट इज वन ऑफ द बेस्ट सेलर इन चाइना, ओके, करंटली राइट नाउ। सो mhm, बहुत लोगों का ये था कि यार भाई तुम्हारे पास इनसाइट्स हैं, सो व्हाई आरंट यू कमिंग ऑन यूट्यूब? और पॉडकास्ट में तब तक करने लगा था बाय चांस, ठीक है। तो एक ऐसे ही मैंने रैंडम कन्वर्सेशन रिकॉर्ड की थी, तो लोगों ने बोला कि पोस्ट करना शुरू करो, पोस्ट करना शुरू करो, सो आई डिड दैट। और ऐसे ही शुरू हो गया। अब ये अलग बात हो गई कि क्यूरियोसिटी अनलीज्ड इज हेल्पिंग ग्रोइंग अदर्स एंड इंडी स्पेस इज आल्सो डूइंग द सेम। And the other mhm, thing is that I do teach some schools out there जिनको एस्ट्रोनॉमी में पढ़ाता हूँ, क्योंकि आई हैव पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स एंड mhm, एरोस्पेस, राइट। सो वैसे होता है। और मैनेज करने की बात रही तो यार वो मेरा मैनेजमेंट बहुत खराब है, क्योंकि आई गिव अप ऑन स्लीप। लाइक मैं स्लीप नहीं अच्छा। लेता, सोता नहीं 2-3 घंटे। अभी तो जब घर आ जाता हूँ तो ज्यादा बेटर हो Mhm, जाती है स्लीप साइकिल, क्योंकि घर पे थोड़ी बहुत डांट वाट पड़ती। लेकिन जब मैं अकेले वहां रहता हूँ बैंगलोर में, तब थोड़ी सी ये रहता है कि दिन भर काम करना, दिन भर काम करना है, फिर वही रहता है कि 3-4 घंटे मैक्स नींद ले रहे हैं, वैसे वाला है। तो ऐसे ही हो जाता है मेरे मैनेजमेंट, मैनेज ऐसे ही कर पा रहा हूँ, क्योंकि यू नीड टू गिव टाइमिंग, क्योंकि आई एम डूइंग सो मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम, कि mhm. स्टार्टअप पे भी टाइम देना है और यूट्यूब पे भी देखना है, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स भी देखनी है, और सबके ईमेल के भी रिप्लाई करने, तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो ऐसा है। I completely agree to you, Shreyas, but just थोड़ा और बढ़ाओ यार, sleep 3-2 hours are not हाँ very हाँ, up ये to the ये mark. ये सबका एडवाइस रहता है यार, सबका एडवाइस यही रहता है कि थोड़ा और सो लिया करो। थोड़ा सा और सोचो, थोड़ा सा हमारी हाँ ऑडियंस के लिए 1 घंटा और। हाँ हाँ यार। ओके, तो बताओ बताओ बताओ। अब तो फिर हम वही क्वेश्चन पे वापस आते हैं यार, कि अपने क्रिएशन वाला। तो Mhm. आपका भी यही पर्पस था कि मेरी एक क्रिएशन हो, या वैसे पर्पस था? डेफिनेटली वही पर्पस था कि एवरीवन हैज अ स्टोरी टू टेल। सो हम स्टार्टअप के थ्रू लोगों की स्टोरीज को और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट चैनल्स। एंड जो अपना क्रिएशन है, चाहे मैं म्यूजिक लिख रहा हूँ, चाहे ट्वीट हो गया, कुछ भी हो गया, इट्स अबाउट टेलिंग माई स्टोरी टू द हम्म वर्ल्ड। हम्म सो इट्स बेसिकली sharing a story or perspective for the world. ओके। That's the reason. एंड दिस इज माय एडवाइस टू द व्यूअर्स। लाइक जॉनसन ने बहुत सही कहा कि सिर्फ अगर तुम ना अपने पैशन फॉलो करने लगो और थोड़ा सा सीख जाओ कि अगर हम उसको Mm-hmm. कंपाउंडिंग कर करके इसको एक स्किल बना लें, और स्किल को Mm-hmm. हम मोनेटाइज कर लें, तो यू कैन डू गुड इन लाइफ, ठीक है। और सिर्फ तुमको वो काम करने में मजे ही आ रहे होंगे और तुम पैसे भी छाप रहे होगे बढ़िया वाले, ठीक है। तो ऐसे ही करने, और शुरुआत में पेशेंस भी रखो। ऐसा नहीं कि भाई मैंने आज शुरू किया है कल मुझे पैसे चाहिए, वैसा नहीं हो सकता। इट्स डिफिकल्ट टू मेक मनी। And one more thing, I guess, if you are entering the online thing,
हम्म। प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस ऑनलाइन क्विक गेट रिच क्विक स्कीम। हाँ हाँ ये हाँ। इतने ज्यादा स्कैम्स होते हैं, हम्म इतने ज्यादा स्कैम्स। इट्स ऑनलाइन में, हाँ, आई आई बिलीव कि यू गेट टू मेक मनी हम्म। कंपेरेटिवली हम्म थोड़ा जल्दी। बट प्लीज, गेट रिच क्विक स्कीम कुछ नहीं होता है। वो जो होता है ना कि बिना एफर्ट्स के आप सिर्फ एक मैसेज डाल दो दिन का, यू विल गेट सो एंड सो। प्लीज डोंट फॉलो इनटू दैट। फोकस ऑन गिविंग वैल्यू टू। अगर आप वैल्यू देते हो, चाहे तो अपने ऑडियंस को दे दो, चाहे कंपनीज को वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू देते हो ना, इन एनी फॉर्म, इट कैन बी आप हम्म कंटेंट लिख रहे हो, इन एनी फॉर्म ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, जस्ट फोकस ऑन ब्रिंगिंग वैल्यू टू द टेबल, मनी विल फॉलो। मनी हम्म मनी विल फॉलो। हम्म गेट रिच क्विक स्कीम वो जो होता है ना, वो वाला प्लीज डोंट फॉलो दैट। हम्म। मैंने देखा है लोगों को, उन्होंने अपने अपने महीने महीने की वर्कशॉप्स सैलरी होते हैं ना लेंगे। ऐसे, सैलरी दे गो इनटू इट, सो प्लीज डोंट डू दैट। हाँ, आई एग्री अपॉन दिस, आई एग्री अपॉन दिस, टोटली एग्री अपॉन दिस। बहुत लोग जल्दी, पैसे जल्दी में कुछ नहीं होता है यार, यू नीड टू गिव दैट आज। एक रूल है कि तुमको 10,000 घंटे कोई स्किल में लगाने होंगे तब तुम टॉप 1% ट्रू। में आओगे। तो ठीक है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि तुम भाई तुमने 2-4 घंटे की वो चीज और तुमको पैसा आ गया। वो तुम पैसा नहीं आएगा तुम्हारे पास, जितना पैसा था वो चला जाएगा वैसे। बिल्कुल। हम्म। डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर। ओके, सो आई एक नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, तुम अंकुर वारिको से भी मिले, सो व्हाट वाज द वाइब विद, हाउ वाज द मीटिंग विद अंकुर वारिको? मेरे को ना ये सोच के बहुत अच्छा हंसी आ जाता है। इट वाज अ वेरी अमेजिंग मीट। सो एक्चुअली अंकुर वारिको वाज डूइंग हिज बुक टूर। एज आई सेड, मेरे को बुक पढ़ना बहुत पसंद है। हम्म अंकुर वारिको एंड जो ऐसे क्रिएटर्स है, वो एक्चुअली हेल्ड मी। पीपल थिंक क्रिएटर है फेसबुक में या फिर यूट्यूब में, बट व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू एक्चुअली फॉलो ना पीपल, दे एक्चुअली चेंज योर लाइफ। सो अंकुर वारिको वाज वन ऑफ देम who हम्म actually held me about a lot of perspective about life. हम्म। So what happened was he was doing his book tour एंड वो कोलकाता आ रहे थे। तो बहुत मुश्किल से मैंने टिकट्स मिल गए थे, लास्ट मोमेंट में वी गॉट द टिकट्स। एंड टू द सरप्राइज व्हाट हैपेंड वाज, उनके आने से ऑडियंस इतनी ज्यादा हो गई थी ना कि दे हैड टू कैंसल आउट पीपल इन फ्रंट ऑफ द स्टे, उधर पे क्या बोलते हैं जो वेन्यू था। सो हम्म देयर वर 50 पीपल वेटिंग आउटसाइड की, दे सेड कि नो मोर एंट्रीज एंड ऑल। सो हम्म आई वाज द सेकंड पर्सन जो क्यू के दम में था। ठीक है, हम्म वी वेटेड फॉर 10 मिनट्स 15 मिनट्स, आई वाज लाइक ब्रो वी नीड टू गेट इन, हम इतने दूर से आए टिकट्स लेके। and inside one the team said कि no we already booked up, can't help it, अगर कुछ हुआ तो we'll do if ऐसी चीज है, ठीक है। So I हम्म said no, we'll have to get it. To my surprise, they came back, ऐसे कहा उन्होंने कि there are 4 more seats, there are 2 more seats available, and हम्म। I was the second person. सेकंड। ओके। I got in. I was the last person जो enter किया उसमें लकीस्ट workshop में, पर्सन workshop। एवर। तो वर्कशॉप में गया, इट वाज प्रेटी अमेजिंग एज सेड। हम्म उसके बाद व्हाट, देयर इज वन थिंग आई हैव रियलाइज फॉर अंकुर, व्हिच इज जिनका जो पर्सोना है ना, जो काम एंड कंपोज पर्सोना ऑनलाइन में, द हम्म सेम इज ऑफलाइन। मतलब he said after the workshop he was taking photos, selfies with the fans. So you won't understand, fans were pounding upon him, यहाँ से selfie, वहां से selfie, हम्म and at the same time was staying calm। ऐसा कहीं भी वो फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे थे। उनके बॉडीगार्ड एंड सिक्योरिटी वे गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, वो हम्म फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे थे। सो या बड़ी मुश्किल से एक फोटो मिली थी। आई गेस हम्म कभी उनसे मुलाकात होगी तो होगी। हम्म बट या ही इज वेरी कंपोज्ड ऑफलाइन एज वेल। जो पर्सोना उनका ऑनलाइन, आई गेस ही इज अ वेरी यू नो सेम पर्सनालिटी ऑफ हम्म दैट, ऑफ द कैमरा एंड ऑन द कैमरा। हम्म। आई वुड एग्री अपॉन दिस। मतलब पता है, जो बहुत लोग सोचते हैं कि ये जो सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज होती हैं, इनकी ऑफलाइन और ऑनलाइन पर्सनैलिटी अलग होती है। नहीं, ज्यादातर कुछ हो सकते हैं, और वो शायद जो होंगे भी ना, वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले होंगे। लाइक जो हम्म। कॉमेडी वीडियोस है वैसे वाले। अब हम यहाँ मेंशन नहीं करेंगे, ट्विटर पे काफी हेट आ जाएगी कर इस दो चक्कर में। कंट्रोवर्सी कर अरे दो। नहीं करनी यार, बहुत गाली खा जाता हूँ मैं वैसे भी, कुछ नहीं करने के वजह से भी तो खा जाता हूँ। अच्छा। तो जैसे ये अपने क्या बोलते हैं, वैभव सर हैं, वैभव सिसिनिति। ओके, या और साहिल ब्लूम, आई हैव मेट देम बोथ। अमेजिंग, आई सॉ योर पोस्ट। या एंड सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस विद साहिल? साहिल अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग, इंस्पायरिंग, मतलब यही दो वर्ड आते हैं उनके लिए। बहुत ज्यादा, और जो कामनेस है, और मतलब एक और नहीं होता कि सिर्फ उसके साथ रह लो तो वैसे वाला। और भगवान की कृपा से कहूंगा, लाइक वहां पे स्पीच भी थी मेरी, ठीक है, वही उसी ओह इवेंट वाओ। पे। ओके, सो जो वैभव सर है उनके साथ आधे घंटे तक मीटिंग करने का मौका मिल गया। लाइक इट
इज वन ऑफ द मीटिंग जहां से अभी तक कोई भी क्वेश्चन का सवाल आता है ना, तो मतलब उस मीटिंग से काफी आंसर्स मिल जाते हैं। वैसे ही है हाल तो। लाइक बहुत सही लगता वो। अमेजिंग। जैसे आपके साथ था ना कि एक्सपीरियंस, इट यू विल रिमेम्बर दैट, वैसे ही मेरे साथ भी हुआ था। और यही है कि यार इनको ना तुम कभी, हम लोग बहुत जज करने लगते हैं, शायद मैं भी करता था, आई डोंट नो। बहुत जल्दी हम ऑनलाइन चीजें जज कर लेते हैं कि यार ये बंदा ऐसा हो जाता है, ये ऐसा है। इतनी जल्दी किसी भी चीज का जजमेंट नहीं बनाना चाहिए। आजकल की एग्री जनरेशन टू ना, दैट। स्पेशली जेंजी, एक चीज गूगल पे पढ़ेगी, अब वो तुरंत एक ओपिनियन फॉर्म कर लेगी। अब वो ओपिनियन कोई नहीं चेंज कर पाएगा। उन्होंने एक चीज पढ़ी और आधे से ज्यादा जिसमें फेक न्यूज है, ठीक है, वो पढ़ेंगे और उसके ऊपर ओपिनियन फॉर्म कर लेंगे, पर दैट इज ए रॉन्ग थिंग। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट, लाइक फेक आई न्यूज और उस आई पे? अग्री टू दैट। अभी रिसेंटली एक ऑथर, मैं नाम ले लूं ऑथर का? ले लो, आपकी मर्जी। So yeah, I agree to his values and things. So I will tell the name. I don't have hesitation. So Jay Shetty के साथ recently this happened, right? कि people were pounding upon him कि चीजें ऐसी है या फिर वैसी है, like he is a fake person, whatever. हाँ हाँ I हाँ don't know this. I don't know the story. What the back story is? He जो भी हो, okay. My point being that I've read his book. I've read his content. हम्म And my point is, I don't know वो person कैसे होंगे because I've never met him. हम्म बट उनकी जो वैल्यूज है, उनकी जो चीजें मैंने सीखी है, विच हैज हाँ, वो रियली हेल्ड बहुत मी इन सही। रिलेशनशिप, राइट? सो दैट हैज हेल्प मी एंड आई रियली थैंक दैट पर्सन फॉर दैट थिंग। अब हम्म इफ यू रीड एन आर्टिकल एंड उसके वजह से यू पाउंड अपॉन दैट पर्सन की एक आर्टिकल से आपको पूरा ही यू नो दैट पर्सन इज फेक, I guess that shouldn't be done because एक article doesn't define you and other person doesn't define you. आपने जो actual work किया ना वो actual लोगों तक पहुंचती है, हम्म and I agree to that, and उनका work मेरे तक पहुंचे, so I am still his fan. Maybe controversy हो जाए इससे, so I agree to that कि आई he एम is सेम सेम, आई विल एग्री, आई एम स्टिल हिज फैन। उसकी अगर तुम बुक पढ़ोगे ना, तुम चेंज ना हो तो लिख के ले लो, मतलब बिल्कुल। चेंजिंग है वो बुक। बट अब हम्म, पता है यार, एक ये भी होता है, सोशल मीडिया पे लोगों को फ्रस्ट्रेशन निकालने का फ्री प्लेटफॉर्म मिल जाता है। घर पे वो बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल घर पे जो बच्चे, मतलब मेरे तो ये है, जो घर पे बच्चे फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल पाते, जो मम्मी पापा दिन भर गाली खाया करते हैं, वो सोशल मीडिया पे आके रेंटिंग किया करते बिल्कुल। हैं। और ऐसे ही ना जाने कितने क्रिएटर्स के साथ होता है, ईशांत हम्म शर्मा एंड और सारे लोग, लाइक ईशांत इट्स शर्मा को सो तो इजी टू। फ्री की हेट मिलती, लाइक आई डोंट थिंक सो। उसने अगर खुद का भी बनाया है तो अब लोग उसको कहते हैं कि तूने चाट के बनाए हैं और ये वो, बहुत बिल्कुल सारी बिल्कुल। चीजें। Yeah, so it's very easy to pound upon someone behind the curtains, but हम्म। वो सामने वाला इंसान समझ सकता है कि यार कितनी एफर्ट्स जाती है, कितनी। एंड ओवर टाइम सक्सेस तो इट्स अ मिथ। ओवर टाइम, एग्री टू ओवरनाइट सक्सेस बहुत कम होती है। डॉली चाय वाला। आई एग्री टू दैट। यस यस। एग्री टू दैट। ओके, अब भाई एक क्वेश्चन है, जैसे आप एक एजेंसी रन कर रहे हो, तो आपको एक अंदाजा होगा कि विच इंडस्ट्री इज गोइंग टू बूम, राइट? कि आगे कौन सी इंडस्ट्री में धमाका होने वाला है। तो ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज है, या एक इंडस्ट्री ही बताओ जिसमें आगे धमाका होने वाला है, जिसमें आगे लोगों को जाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, या आप अगर अपने भाई को या अपने आप ही को एडवाइस दे रहे होते, तो किस चीज में जाने के लिए करते? ओके, सो मैं दो तीन इंडस्ट्रीज बताता हूँ जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, नॉट बिकॉज कि मैं तो मार्केटिंग डोमेन से, राइट, लाइक हम्म एजेंसी एंड ऑल, बट मैं दो तीन इंडस्ट्री आई एम वेरी कीन अपॉन, एंड आई एम लाइक वर्किंग विद स्टार्टअप्स, उनके फाउंडर्स से मिला हूँ मैं, एंड मैंने रिसर्च की, तो उस बेसिस पे आई एम टेलिंग। मार्केटिंग वाले में इट्स वेरी सर्टेन कि आप एआई को यूज करके अगर बिजनेस या बिजनेस पर्सन की लाइफ इजी बनाते हो, you have money all over pounding you. हम्म I can't stress on the fact कि AI से आप कितना हेल्प कर सकते हो बिजनेसेस को. Even we at Genex 24 are trying to inculcate AI automations and stuff so that हमारा work कम हो and businesses को help करे. हम्म So that's one thing. Go into that. Go research that. That's our thing. That's one thing. Second thing is I have met a lot of renewable energy sector के founders से मिला हूँ मैं. Like हम्म solar हो गया, and so I have very मेरे को काफी इंटरेस्ट है इस चीज में. सोलर हो गया, एग्रीटेक हो गया, डेयरी फार्मिंग एंड ऑल, काफी विद टेक्नोलॉजी एंड एआई इनेबल्ड. सो एआई सोल थीम रहेगा सबका. हाँ ठीक है, हाँ हाँ काइंड हाँ। ऑफ कि एआई यूज करके, राइट. सो यू हैव टू लर्न एआई, नो नो अदर पॉइंट टू दैट. हाँ, तो हम्म एग्रीटेक हो गया यूजिंग एआई टेक्नोलॉजी.
आई हैव सीन कि अभी उसमें ना पे ज्यादा नहीं है, बट आई हैव अंडरस्टूड कि अगर आप इससे समहाउ कुछ क्रैक करो वैल्यू, ठीक है, हम्म ब्रेक डाउन करो, सो देर इज लॉट ऑफ मनी टू बी मेड बिकॉज द कंज्यूमर मार्केट इज ग्रोइंग. हम्म एंड दैट्स वन थिंग. सोलर इज वेरी मच आई एम कीन अपॉन, एंड आई हैव सीन बहुत ज्यादा उसका ग्रोथ हो रहा हाँ है, एंड इलेक्ट्रिक भी उसी में आ गया, रिन्यूएबल एंड ऑल. सो दीज टू थ्री सेक्टर्स आई गेस बहुत ज्यादा बूम होने वाला है. एंड वन मोर विच इज मेजर, विच आई गेस कंटेंट वाला. वो तो कंटेंट वाला मतलब आई गेस 5 6 साल में एवरीवन इज गोइंग टू बी अ क्रिएटर. हाँ हाँ एवरीवन इज गोइंग टू बी अ क्रिएटर. सम माइक्रो माइक्रो, क्रिएटर हाँ माइक्रो क्रिएटर्स रहेंगे माइक्रो का भी आई गेस और भी छोटा वर्जन आ हाँ जाएंगे. हाँ बट डू यू फाइंड इट रॉन्ग और राइट अगर ये सब क्रिएटर रह गए हो गए तो फिर फर्क क्या बट पता है जैसे अभी भी क्रिएटर है जैसे कोई भी आदमी अगर फेसबुक पे अपनी रील बना के डाल रहा है ठीक अग्रीड है अग्रीड, डेफिनेटली अग्री टू है दैट. ना तो वो भी एक क्रिएटर है बट पता है अब वो रील अपने सेटिस्फेक्शन के लिए डाल रहा है ठीक है आई विल कॉल माई सेल्फ एज ए क्रिएटर बिकॉज आई एम पुटिंग आउट सम वैल्यू देयर ओके तो शायद मेरे अकॉर्डिंग ना आगे एक डिफरेंस होगा एक फाइन लाइन होगी दोनों के बीच में कि कौन क्रिएशन कर रहा है सिर्फ एक अपने गानों के लिए या अपने एक होता नहीं कि एक वो एटीट्यूड वाली रील्स है बहुत सारी आती एक होगा मीम्स का सेक्शन एक होगा क्रिएटर वैसे वाले होंगे जो मीम सेक्शन में आते होंगे या जो वैल्यू एडिशन वाले या एंटरटेनमेंट वैसे वाले क्रिएटर्स अलग होंगे बाकी जो अपने जो डेली के अंकल आंटीज या नॉर्मल लड़के लड़कियां जो अपनी रील्स बनाते हैं वो अलग होगा तो दिस विल बी अ फाइन लाइन बिटवीन क्रिएटर्स आई गेस वैसा ही होगा, एंड अभी भी होता ही जा रहा है. आई गेस उनकी ऑडियंस डिफरेंट है. वन थिंग यू सेड ना, अपने उसके लिए ट्रस्ट भी कोई अपने लिए नहीं डालता. हम्म ऑडियंस ये होती है कि ऑडियंस हमारे रिलेटिव्स हो गए, जो हम्म और क्रिएटर्स हो गए, जो एवरीवन इज अ क्रिएटर, सबके पास इंस्टाग्राम अकाउंट है, सब पोस्ट करते हैं. एक हम्म स्टोरी भी हम लगाते हैं ना, तो आई गेस वो कंटेंट ही क्रिएट हुआ, बट ऑडियंस का डिफरेंट हुआ. वो हम्म हम स्टोरी इसलिए लगाते हैं कि हम दिखाना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को कि वी सो एंड सो एग्री टू दिस पॉइंट. हम्म एक लेवल हुआ. अगर आप क्रिएटर और खुद का कंटेंट बना रहे हो, आपकी ऑडियंस बड़ी हो गई, बट हाँ आप आइडिया ही शेयर कर रहे हो. हाँ बट इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ शेयरिंग द आइडिया. सो आई गेस हम्म डिफरेंट जॉनर. आई जैसे सेड ना, माइक्रो का भी मिनी माइक्रो या कुछ ऐसा आ जाएगा. हम्म So I guess हाँ that would be blowing because everyone wants to create content. हाँ Even my मासी, I like she wants to create content कि उनको ये नहीं चाहिए कि मेरे पास 1 million followers हो जाए. She wants कि 5,000 या फिर मेरे 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 फैमिली में everybody knows me कि she यस does यस and does. हाँ हाँ आई एग्री बहुत लोगों का हो गया कि हमारे क्या हुआ हमारे 1,000 लोग ही सब्सक्राइब कर लेंगे काफी हो जाएगा ठीक है तो Mm-hmm. इतना काफी है हाँ बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए देखो ये कंटेंट ने ना दरवाजे भी खोल दिए हैं जैसे छोटे मोटे या स्पेशली फॉर द वुमेन्स हाउसवाइफ्स ओके काफियों को मैंने देखा है कि उन्होंने अपने कुकिंग चैनल खोल लिए या उनके Mm-hmm. बात करने का तरीका अच्छा था तो उन्होंने ऐसे टाइप के चैनल खोल लिए या एक पेज बना लिया जिससे वो सिर्फ अपने थॉट शेयर करिए एंड दे आर हैविंग Agree to एम्पल that. अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स ओके बिल्कुल. सो एक उनको एंड आई प्लेटफॉर्म गेस मिल ये गया चीज भी अच्छा है. आई गेस लोकल ब्रांड्स के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा. आई गेस आने हाँ वाले हाँ टाइम. हाँ हाँ So local brands के लिए is open. Like if you're a creator, नहीं आपके पास 5,000 followers है in your area, हम्म like 500 मीटर में if I have 5,000 people, what else हम्म do you need? वहाँ पे हम्म कोई लोकल शॉप या कुछ खुल रहा है. हम्म, You are the staff for there, हाँ them, एक right? बीच में शायद चला भी था लोकल फॉर वोकल सरकार ने Agree किया that. था एंड दिस इज हैपनिंग इन द कंटेंट थिंग राइट और लोग प्रमोशन भी वैसे ही कराना चाह रहे हैं अपना उसी तरीके से और द सेकंड थिंग आई वुड लाइक टू Definitely agree to that, I guess. the second thing I would mention here is about कि यहाँ से ना तुम छोटे छोटे स्टार्टअप्स भी एक पर्टिकुलर एरिया के ले आएंगे ठीक है Mm-hmm. कि हमारा इस शहर में है सिर्फ लेकिन उस शहर में 50 आउटलेट्स हैं वैसे टाइप वाला Hmm. कि जैसे मेरा Yeah. XYZ नाम का आउटलेट है कोलकाता पे उसमें मैंने पहला आउटलेट ईडन गार्डन्स के पास खोला था अब मैंने Mm-hmm. पूरे कोलकाता में 5 साल के अंदर एक्सपैंड कर लिया और अब 20 से ज्यादा आउटलेट है Oh. सो एंड ये तो आई गेस बहुत सारा घर घर पे हो रहा है. आई गेस एवरी मॉम सन के पास हैव एक्सेस टू ऑनलाइन. सो एवरीवन इज लाइक कि लेट्स ओपन समथिंग कि एक अचार का ही कुछ खोल लिया एंड क्लाउड दे किचन बिकम बना लिया क्रिएटर. क्लाउड किचन, राइट. हम्म एक बगल में इन माय नेबर शी डज एम्ब्रॉयडरी एम्ब्रॉयडरीज. एम्ब्रॉयडरी हाँ हम्म सॉरी. सो वो करती है एंड शी जस्ट स्टार्टेड. उन्होंने इंस्टाग्राम में पेज बनाया एंड सेल्स आ रहे हैं उनके.
उतने लेवल पे नहीं आ रहा, बट इट्स गुड। सो आई हम्म गेस वो भी एक स्टार्टअप ही हुआ, आई गेस। हम्म। नॉट दैट लेवल, बट एवरीवन इज बिकमिंग मिनी हाँ हाँ। क्रिएटर्स या मिनी स्टार्टअप ओनर्स। तो अच्छी बात भी है। अब वो नहीं है कि हर स्टार्टअप को आप रजिस्टर करो भाई, कि हमको पहले हाँ। रजिस्टर। और जैसे कहा जाता है इंडिया में 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स आ चुके हैं, लेकिन उनमें से हम्म, चल कितने रहे हैं, कंट्रीब्यूट कितने कर रहे हैं, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दैट। हम्म, वो अलग ही स्फेयर ही है बात करने का, है ना? तो उस पर हम बात अभी नहीं करें तो ज्यादा बेटर है यार। बिल्कुल बिल्कुल। अब थोड़ा सा पर्सनल सवाल पूछूंगा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंट्स इन योर लाइफ? ओके, मतलब दिस इज अ क्वेश्चन आई गेस। मैं एक इस क्वेश्चन के ना एक एक स्टोरी बताता हूँ। रिसेंटली आई मेट वन ऑफ अ फाउंडर, जो जिन्होंने शार्क टैंक पे पिच किया था, एंड अमन गुप्ता ने उनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया था। आई वोंट टेल द नेम, बट हाँ। सो आई आस्क्ड हिम कि व्हाट विद द व्हाट आपके लाइफ में सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या था, एंड आई गेस आप अपनी फ्यूचर जनरेशन क्या देना चाहोगे। सो हम्म आई वाज थिंकिंग, वो बोलेंगे स्टार्टअप्स हुआ या एंटरप्रेन्योरशिप या बहुत सारी चीजें। ही सेड हम्म पेरेंटिंग, एंड आई वाज लाइक व्हाई पेरेंटिंग, मतलब हाँ। देन ही सेड कि व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, फिर कोई भी किड, उसके पेरेंट्स का जो इम्पैक्ट होता है ना उसके लाइफ में, हम्म। दैट्स बियॉन्ड एनीथिंग। यस। अ पर्सन बिकम्स समथिंग एंड समथिंग जस्ट बिकॉज कि उसका पेरेंट्स का सपोर्ट है, पेरेंट्स ने ऐसे आउट ऐसे नरिशमेंट की उसकी। सो आई हम्म कंप्लीटली एग्री टू दैट कि पेरेंट्स का आपकी लाइफ में जो असर होता है वो कोई नहीं कर सकता। इवन भाई बहन, सिबलिंग्स आर ओके, बट यू लर्न फ्रॉम देम, यू लर्न फ्रॉम देयर एक्शंस। वो जो आपको हम्म बोलते नहीं है, जो आप चीजें देखते हो घर पे, हम्म दैट हैज अ वेरी मेजर इम्पैक्ट ऑन यू एज अ पर्सन। एंड आई गेस हम्म मेरे 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 लाइफ में भी माई पेरेंट्स हैव द बिगेस्ट इम्पैक्ट इन माई लाइफ, एंड आई हम्म हैव गिवन देम द पावर अभी भी कि हम्म। उनकी ही बातें मुझे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करे। हाँ हाँ, बिकॉज आई सेम। नो कि हाँ, बिकॉज आई नो कि दे आर द पीपल हु विल स्टैंड विथ यू नो मैटर व्हाट, हम्म एंड अच्छे के लिए। सो पहले तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है, उनका हम्म। इम्पैक्ट होता ही हमें। बट एज ग्रोइंग अप हमें प्रायोरिटी बनाना चाहिए कि उनकी बात ही हमें इम्पैक्ट करे। सो या दैट्स अ थिंग व्हिच आई गेस एवरीवन शुड डू। हम्म। ओके। सेकंड थिंग, क्या मतलब कभी स्टार्टअप के लिए, अपने एजेंसी के लिए एडवाइस लेते हो पेरेंट्स से? फंड्स। एडवाइस एडवाइस कि यार मैं पापा एडवाइस। या मम्मी मैं ऐसे कर रहा हूँ, आपको कुछ एडवाइस है? अरे लाइक एक ये सिली कंप्लीट। क्वेश्चन है, ये सिली क्वेश्चन है लेकिन। मैं हाँ, मैं कंप्लीट बताता हूँ क्या होता है। पेरेंट्स को तो लगता ही नहीं कि क्या कर रहे हो यार लैपटॉप पे बैठ के 10-10 12-12 घंटा, राइट? हाँ हाँ, तो सेम सेम सेम। या सो अवर एंटायर टीम इज ऑनलाइन, ठीक है। हमारा जो ऑफिस भी इट्स इन मुंबई। तो जो हमारी पुणे मुंबई की सारी जो टीम है, एवरीवन इज ऑफलाइन। कभी कभी काम ऑफलाइन जो पड़ता है ऑफिस में करते हैं, मैं दूसरे को फाउंडर। हम्म बट या एवरी वर्क इज ऑनलाइन, सो मैं लैपटॉप में ही बैठा रहता हूँ पूरा दिन। हम्म तो देर लाइक क्या कर रहे हो पूरा दिन लैपटॉप पे बैठ के। तो हम्म। फॉर देम स्टिल इट्स लाइक कि हाँ कुछ लगा हुआ फैंसी है। वर्क चल रहा है, हाँ। फैंसी वर्क चल रहा है। बट दे स्टिल बिलीव कि मतलब हाँ। बट हाँ, उनको लगता है, व्हेन यू सी थिंग्स कमिंग अप रोलिंग अप, तो दे फील लाइक कि हाँ तो कुछ काम तो कर रहा है, बट चलो ठीक है, जो भी कर रहा है सही कर रहा है। तो ये थोड़ा सा हिपोक्रेसी हो गया कि हाँ 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 उनको तो लगता ही नहीं कि मैं काम ऐसा टाइप से। हाँ हाँ हाँ, ये एक्चुअली होता है शायद, पता है, ये हमारी जनरेशन, हमारे पेरेंट्स ना अभी इस चीज के इतने अडेप्टेबल नहीं है। मतलब मैं अगर ये सब चीजें कर रहा हूँ तो ऐसा हो, कभी 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 ये तक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई आर यू डूइंग पॉडकास्ट, लाइक व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट। अब मैं उसका क्या आंसर दूं यार आपको, अब क्या समझाऊं मैं उसको? अब मैं मतलब आपको एक ही चीज बताऊं कि मुझे एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है, ये करना है, वो करना है, वो उनको लेके जितनी देर में मैं समझाऊंगा उसी देर में मैं और कुछ काम कर सकता हूँ। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद अवर पेरेंट्स जनरेशन। उनकी भी कोई गलती नहीं है, हाँ, बट उनकी भी गलती थोड़ा नहीं सा है। गैप है। और वो क्योंकि अब वो जनरेशन एक्स से है, तो उनका और हमारे में थोड़ा सा डिफरेंस तो लर्निंग प्रोसेस का रहेगा ही। क्योंकि बिल्कुल। एक वो आया ही हुआ है कि हमसे हमेशा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन एडवांस होती है। ठीक ठीक है। है। अब सेकंड थिंग इज, थर्ड थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, मतलब क्वेश्चन है ये मेरा, कि जो आपकी एजेंसी है जेनेक्स 24, ठीक है, हम्म। उसमें कभी आप कोई चीज का ट्रेंड भी पता लगा सकते हो क्या, कि आप कोई ये चीज ट्रेंड करने वाली है?
मतलब Trend in the sense, elaborate. this topic is going to be trending on social media in 15-20 days. Like you can predict many, मतलब डाटा एनालिसिस टाइप का भी होता है आपके यहाँ. लाइक जो एआई का पूरा सेक्टर है उसमें से आप लोग Mhm. क्या क्या चीजें यूज करते हो. दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग. Okay. मैं बताता हूँ पर्सपेक्टिव मेरे को जितना समझ में आ रहा है व्हाट यू आस्किंग इज या वी यूज डेटा टू मतलब यू कांट प्रेडिक्ट आप डेटा के बेसिस में यू कैन समझ सकते हो कि प्रोबेबली वुड बी हैपनिंग ठीक है हम्म सो आई गेस या डेटा तो मिल जाते हैं सोशल मीडिया एंड ऑल से कि दिस कीवर्ड्स वर्क्स वेल हम्म ठीक है एंड इफ यू सी अ ट्रेंड कमिंग अप न्यूज एंड ऑल दिस कीवर्ड इज बूमिंग तो यू टारगेट दैट कीवर्ड हम्म सो या दैट्स डेफिनेटली ट्रू एंड एआई से हमारा जितना भी डेटा एनालिसिस होता है जितना भी चीज होता है वी हैव वेरी लेस पीपल ऑन दैट हम्म we believe on data more compared to no we believe on people as well but हम्म data is what supports the people so I हम्म guess you need emotions with people and data as well so हम्म you can't predict but समझ में आ जाता है not 15 or 20 days down the line but I guess 3 to 4 months you see कि what would be coming up हम्म so I guess data से काफी चीज पता चल जाता है because data is transparent. If it's working. If it's not working, not वर्किंग working. इट्स नॉट बस वर्किंग या. that's it. That's it. तो I guess बहुत ट्रांसपेरेंसी आता है उसी बेसिस पे हम वर्क करते हैं इन एवरी कैंपेन या कुछ भी करो तो या ओके. सो लाइक आई वुड मूव टू लाइक अब हमारा धीरे धीरे पॉडकास्ट एंड की तरफ बढ़ रहा है. सो अब एक क्वेश्चन, अब एक हमारा राउंड होता है हमारे पॉडकास्ट पे जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं स्पाइसी. इट इज कॉल्ड एज रैपिड फायर राउंड ऑन क्यूरियोसिटी एंड लीस्ट. ओके. I ठीक है. love it. अब यहाँ पे अब थोड़े से अजीब गजीब क्वेश्चन आएंगे. सो आर यू रेडी फॉर दैट? I'm absolutely ready. I'm बहुत excited हूँ कि क्या क्वेश्चन जा सकते हैं. ओके. तो द फर्स्ट क्वेश्चन आई विल स्टार्ट नाउ. और ये ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड या 30 सेकंड में आंसर देना है. नेम योर वर्स्ट टू क्वालिटीज. बेस्ट सब बताते हैं, वर्स्ट बताओ. आई एम लेजी समटाइम्स हम्म बहुत ज्यादा मेरे को कभी कभी नींद आने लग जाता है एंड मैं उसमें हो जाता हूँ लेजी काफी वाला हम्म एंड कंसिस्टेंसी टुवर्ड्स हेल्थ एक्सरसाइज करने वाला मैं बहुत ज्यादा हूँ मतलब हम्म आई डोंट एक्सरसाइज मैं करता हूँ कि हाँ चलो शुरू किया बट नहीं हो पाता मेरे से या आई गेस ओके ये दो पे वर्क करना है मेरे ओके. को काफी ज्यादा फेवरेट फूड. फेवरेट फूड इज एनीथिंग रिलेटेड टू फास्ट फूड कुछ भी होना चाहिए पिज्जा पिज्जा आई गेस इज ओके ओके. एनी सुपर पावर यू वांट टू हैव. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मेरे को ना चाहिए ठीक है सुपर पावर टू रीड पीपल्स माइंड कि वो क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में अभी तुरंत आई वांट कि ओके. शेयर्स दिमाग वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में अच्छा. ये पता है, ये मैंने जितने गेस्ट से पूछा सबको ये वाला चाहिए कि टू रीड पीपल्स माइंड, टू डाइव इनटू हाँ पीपल्स माइंड. आई डोंट नो व्हाई पीपल वांट दिस बट ये सबका ही रहता है. एक दिस इज अ कॉमन थिंग दैट आई फाउंड आउट. राइट. तो दिस विल नेक्स्ट बी अ सुपर पावर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक कैन यू mention down your favorite cities in India माय apart from फेवरेट सिटी Kolkata. हाँ आई गेस बैंगलोर Hmm. to meet Shreyas and all the amazing people out there. I guess I really believe that Bangalore has that culture. Hmm. Pune, Bhopal, and all the states. ओके 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 ओके. उसके बाद इफ ये थोड़ा सा बच्चों वाला क्वेश्चन हो जाता है लेकिन हम रखते हैं. डोरेमोन के So, कौन सा गैजेट पसंद करोगे अगर यूज करना हो तो. anyway, door. एनीवेयर डोर. ओके. हाँ कि लोग. मैं कभी कभी अभी भी देखता हूँ डोरेमोन नहीं, आई ऑल्सो डू वॉच इट. आई ऑल्सो डू वॉच इट. हाँ व्हाट वाज योर मोस्ट एम्बरेसिंग एक्सपीरियंस टिल डेट. ओके ये थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को थोड़ा सा ब्रीफ में ठीक है ठीक है समझाऊंगा ठीक है बट ठीक ठीक है है ठीक है ठीक तो एक बार क्या हुआ था मैं अपने स्कूल में वो होते हैं ना ऑडिटोरियम में ऐसे है. न्यूज रिपोर्टिंग ऐसे करते हैं वो क्या बोलते हैं स्टार्टिंग में जब होता है मॉर्निंग प्रेस एंड ऑल टाइम में तो क्या हुआ था मेरे को दिया गया था पहली बार न्यूज पकड़ा दिया गया था कि ये आज का न्यूज है सुबह न्यूज पेपर आया है हम्म और न्यूज पढ़ना था मेरे को जाके एंड आई वाज वेरी वरीड मैंने कहा आई यूज्ड टू बी इंट्रोवर्ट किड और मैं जाता हूँ न्यूज पढ़ने और प्रेयर बोलना शुरू कर देता हूँ हम्म और 2 मिनट तक बोलता रहता हूँ प्रेयर अकेले वो हम्म बाकी लोग रिपीट भी नहीं कर रहे होते हम्म तो जैसे ही प्रेयर खत्म होता है इतनी जोर से तालियां बजती है एंड भाई साहब आई वाज एम्बैरेस्ड एट द सेम टाइम इतनी जोर से तालियां बजती है इतनी सारी तालियां हम्म आई टर्न बैक एंड एवरीवन इज स्टन्ड कि मैंने क्या किया है
तो हम्म दैट वाज वेरी एम्बैरेसिंग। फिर जब मैंने क्लास में गया तो मेरे को स्टैंडिंग ओवेशन मिला हम्म कि भाई ये तूने क्या कर दिया। तो दैट हम्म वाज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी। हम्म। ओके ओके। लास्ट क्वेश्चन यही है कि कभी मतलब ऐसा हुआ है कि इंटेंशनली किसी के साथ गलत करने की कोशिश किया हो? मतलब ये आप ना भी आंसर दो बट जैसे आपकी मर्जी। अब मैंने आई गेस ये वाला तो नहीं, क्योंकि आई गेस मेरा ना, मेरे को याद नहीं मेरा फाइट कब हुआ था। सो हम्म आई एम नॉट दैट फाइट पर्सन वाला। मैं जनरली अगर कुछ ऐसा हो रहा होगा ना, आई वुड रादर बी साइलेंट। आई एम नॉट दैट कन्फ्रंटेशन वाला। हम्म तो नो, नॉट रियली आई गेस। ओके। द क्वेश्चन द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस इज दैट कि इंडिया में ना मतलब ये यहाँ से मैं ये माइंडसेट चेंज करना चाहता हूँ कि इंडिया में ना हर चीज का एक जवाब हो जाता है कि आओ लड़ लेंगे और लड़ लेंगे। इसी वजह से देख लो यार 15 करोड़ से ज्यादा कोर्ट केसेस पेंडिंग पड़े हैं। ठीक है। सो हर चीज का जवाब लड़ना नहीं होता तो मतलब एक नॉर्मल साइकोलॉजी जानने के लिए इस वजह से अलग क्वेश्चन रखा जाता है। सो आई नाइस होप क्वेश्चन। आई होप यू डिड गॉट offended with that and अरे नहीं नहीं, नो वरीज, दैट्स हाँ। अमेजिंग। सो मतलब ये हमारे स्टार्ट वो हमारे इसमें पॉडकास्ट में हमेशा ही क्वेश्चन रहता है और हर क्वेश्चन के पीछे कुछ साइकोलॉजी रहती है कि टू नो द पीपल टू नो द गेस्ट। ओके। सो अब नाइस। ये लास्ट क्वेश्चन है पॉडकास्ट के सबसे पूछता हूँ मैं ये मेरा थोड़ा सेल्फिश क्वेश्चन होता है एंड बाय दिस पॉडकास्ट विल एंड। सो द क्वेश्चन इज लाइक कि मेरे लिए कोई एडवाइस द थिंक दैट आई एम डूइंग गुड और बैड या मुझे कोई चीज सही करनी चाहिए कोई एडवाइस आपकी साइड से? सो मतलब आई गेस यू आर डूइंग वेरी वेल और इतने सारी चीजें मैनेज कर रहे हो। सो आई गेस दिस वन थिंग विच मैंने आई आई चेकड आउट इंस्टाग्राम एंड थिंग। आई गेस आपको, यू कैन वर्क ऑन गेटिंग सम शॉर्ट form content from the podcast as well, a little bit more. So I guess that would really help you grow. I guess you're growing pretty well, and people know. मेरे Twitter mutuals know you. Anushaj, हम्म everyone is a big fan of yours. हम्म। So, but I guess थोड़ा सा if you focus on short term बोल रहा हूँ, शॉर्ट। short form content from podcast, I guess that would really give you a thing. या ओके ओके। And one more thing, can I ask one question, rapid question, हाँ ending हाँ with it? हाँ हाँ हाँ। If given an option, what TED talk, if given an option to give a TED talk, which topic would you give a TED talk on? I would give it TED Talk about AI and startups, including the space spectrum with it. Okay, can I ask why? Because like AI is everywhere. Okay, startup Mhm, I'm building and I'm using AI and I love the mhm, space and I love space. Okay, so क्योंकि ये तीनों से ही मेरा इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है और इन तीनों mhm, पे मेरे को नॉलेज भी है। लाइक अभी मैंने कुछ ठीक ठाक यूनिवर्सिटीज में स्पीच दी तो mhm. वहां पे जाके मतलब यही था कि इन्हीं सब टॉपिक्स पे मैंने स्पीचेस दी थी। तो दिस Mhm. वाज इट। Nice. Okay. So Yeah. by this, we will end today's podcast. And Jivanshu, it was our pleasure to have you. And शायद ना अभी हम आपको फिर से जिसमें हम थोड़ा सा और डीप डाइव करेंगे कंटेंट क्रिएशन की जर्नी के बारे में और कंटेंट क्रिएशन के वर्ल्ड के बारे में। तो उसके लिए भी रेडी हो जाओ कि पार्ट 2 के लिए आपको जल्दी से ही मैसेजेस आने वाले हैं फिर I'm से। happy. मैं बहुत जल्दी आना चाहता हूँ। And probably let's hope जब I will complete that song, तो मैं आपको हम्म। song के भी हाँ हाँ। regarding we तो can उससे do that उससे बेटर plan. कोई ऑप्शन ही नहीं हो सकता उससे बेटर तो कोई मौका भी नहीं हो सकता। Yep. So let's do it. I'm ready. बहुत बहुत यस। मजा आया मेरे को आपसे, आपके साथ पॉडकास्ट करके। आई गेस मेरा ये मैंने किया है, बट ये दिस इज द मोस्ट बेस्ट आई गेस मेरे को, बिकॉज ओपन अप होने का अपॉर्चुनिटी मिला बहुत ज्यादा। एंड ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, एंड बहुत मेरे को सोचने पे मजबूर मजबूर किया कि इन अ गुड वे। तो आई रियली लव्ड योर क्वेश्चंस एंड लव टू गेट दैट क्वेश्चंस एंड उसका साइकोलॉजी बिहाइंड। ओके यार मतलब हम हर आदमी को थोड़ा सा चैलेंज भी करना चाहते हैं और हम ना क्योंकि चाहते हैं कि इंडिया की ग्रोथ हो। इंडिया की ग्रोथ कहाँ से होगी अब जब लोगों का दिमाग सही से चलेगा। तो बिल्कुल। हम जानना चाहते हैं कि आजकल के यूथ का माइंडसेट क्या है। अगर कुछ अच्छी चीज मिलती है तो वो हम सीखते भी है खुद से। ठीक है जैसे आपका एक अच्छी चीज आपसे मतलब ये पता चले कि हाँ आपके और मेरे एक जगह पर्सपेक्टिव मैच करते हैं कि दिस इज माई क्रिएशन। ठीक है तो कभी कभार आगे मैं कोई चीज नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ तो आई विल रिमेम्बर यू कि जीवांशु भाई ने भी यही बताया था।
और ऐसे जो व्यूअर्स होंगे वो भी कुछ नया स्टार्ट कर रहे होंगे तो दे विल रिमेम्बर यू, राइट? Agreed to that. Definitely agreed to that. Okay, so now we will conclude this podcast. Thank you for coming, Jivanshu bhai. Thank Once you for again. calling. It was a Mhm. pleasure. Okay, so we will do part two somewhere soon in the near future. Okay, so now let's end this podcast. In the land of colors, where dreams ignite, a nation rising with stars shining bright. From the dusty streets to the city lights, India growing with newfound might, with curiosity. We take to the sky